Hello learners, I welcome you all in this session on consumer behavior, which is also called as buyer behavior. Is a part of the course AMK-01 BCOE-142. At the same time, it is also part of the course of MCO-06, which is an MCOM program. So this is useful for all BCom and MCOM students. And before we start discussion on this topic, since I am getting many messages from the learners and they want to keep the session in Hindi as well, so I would try to make it bilingual as much as possible, right? So now let us begin the session, that is consumer behavior or buyer behavior, right? Up till now, in the previous sessions, we have discussed that in modern marketing, consumer has gained greater importance. Every marketing activity and all the functions of marketing, the strategies, the policies, they all revolve around consumer, right? And since consumer has gained so much of importance, it becomes all the more important to understand each and every aspect which is related to consumer. कि अगर consumer के को ध्यान में रखते हुए ही अगर हमें अपनी सारी रणनीतियाँ, अपनी सारी स्ट्रैटेजीज, प्लान्स और पॉलिसीज़ बनानी हैं, तो सबसे ज़्यादा अहम बात ये हो जाती है कि हम कंज्यूमर के बिहेवियर को, उनके तौर तरीक़ों को, क्या चीज़ उनको इम्पैक्ट कर रही है, क्या उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, इन सारे बातों को हम ध्यान से समझें और उनकी स्टडी करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. इसके अलावा हमने प्रीवियस सेशंस में जो देखा था वो देखा था STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, as one of the most commonly used marketing framework, and that is why we discussed what segmentation is, what targeting is and what positioning is. And in segmentation, targeting and positioning also, what we were trying to see, we were trying to focus on the consumers, because the ultimate objective is to have delighted customers in the business, delighted consumers in the business. That is the objective, because once your customers are delighted, you will be able to churn all the other benefits, right? So for that we need to understand consumers, and we also need to understand what really impact consumers, what are the factors which influence consumer behavior. So in this session we'll be discussing all those things. First of all, let us understand now, is there any, since in the topic I have said consumer behavior or buyer behavior. So we'll discuss, is there any difference between consumers and customers and buyers? Are there some differences or not? So let us quickly see what is a customer and what is a consumer, right? So customer, anybody who's going to buy a commodity or service, that means offering which the companies are providing. So anyone who is going to buy is becoming the buyer. बायर कौन हुआ? जो भी जाकर के किसी ऑफरिंग को खरीदता है वो बायर हुआ, और उस बायर को आप कस्टमर भी कह सकते हैं. बट द कस्टमर मे और मे नॉट बी द यूज़र ऑफ द कमोडिटी. कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ख़रीद रहा है उन चीज़ों को वो यूज़ भी कर रहा है, राइट? तो इसी बेसिस पे हमारा ये डिफ्रेंसिएशन है कस्टमर्स में और कंज्यूमर्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हाउ कैन वी कैटेगराइज customers. Customers can be broadly kept into two categories. One is organizational customers and the other is individual or final customers, right? Organizational customers किसको हम कहते हैं? जिनको हम कहते हैं संगठनात्मक क्रेता, ठीक है, या उपभोक्ता. किसको कहते हैं? तो organizational customers are those customers who are buying things but not for their own use. They are buying either for reselling or maybe they are buying to consume it to make something which they can offer for sale in the market. उनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स. उन्होंने ख़रीदा, या तो ख़रीद के बेचने के लिए ख़रीदा, या तो उन्होंने कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स खरीदे जिनको प्रोसेस करके और वापस से वो उसको मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, एक ऑफरिंग बना करके वो मार्केट में लेकर के आ रहे हैं. दे आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स. बिसाइड्स when I say raw materials or anything which is used in further production, right? So there are certain things which are used directly in production and there are certain things which are not used directly but they have indirect implication on the production of commodities. For instance, suppose I am manufacturer of stationery, मैं उसमें पेन्स या पेंसिल्स की मैन्युफैक्चरर बना रही हूँ. ऐसे केस में जो रॉ मटेरियल्स होंगे उस पेन और पेंसिल में बनाने के लिए वो हो गई हमारी डायरेक्ट कमोडिटीज़, उसको भी मैं ख़रीद रही हूँ. साथ ही साथ हमारा कुछ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होगा, कुछ ऑफिस होगा, उस ऑफिस के लिए यूटिलिटी वाली कुछ चीज़ें होंगी जो हमें ख़रीदनी होंगी. फॉर इंस्टेंस हमें पंखे खरीदने हैं, कूलर्स खरीदने हैं, AC खरीदने हैं, वाटर डिस्पेंसर खरीदना है, ऑल दोज थिंग्स. वो सारी चीज़ें भी हमने क्या करी? खरीदी. वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली
काम नहीं आ रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वो प्रोडक्शन के लिए ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे कस्टमर्स भी जो इन चीज़ों को खरीदते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स। ठीक है, उनका जो अप्रोच होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, या उनको अगर हम एज अ मार्केटर, इट डिपेंड्स whom do I want to target, whether I am targeting organizational customers or I am targeting final customers। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स की जैसे मैंने बात करी, उनका बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट होता है। नाउ लेट अस कम टू इंडिविजुअल और फाइनल कस्टमर्स। इंडिविजुअल या फाइनल कस्टमर्स वो होते हैं जो चीज़ों को खरीदते हैं, जो ऑफरिंग्स को खरीदते हैं, यू नो, फॉर देयर ओन यूज़ और मे बी यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। दे आर फाइनल कस्टमर्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एज अ कस्टमर, सपोज आई एम बाइंग चॉकलेट पाउडर, राइट? सो आई एम द फाइनल कस्टमर, क्योंकि वो चॉकलेट पाउडर ना तो मैंने फर्दर सेलिंग के लिए, रीसेलिंग के लिए ख़रीदा है, ना तो मैं उस चॉकलेट पाउडर का कुछ ऐसा बना करके उसको मार्केट में रीसेल करने जा रही हूँ। वो चॉकलेट पाउडर खरीदने के मेरे दो पर्पज़ हो सकते हैं। एक तो ये कि मैं खुद उसको कंज्यूम करूँ, यानी कि मैं उसकी यूज़र बन जाऊँ, और दूसरा ये कि मैंने उसको या तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए ख़रीदा या तो फ्रेंड्स के लिए ख़रीदा है। तो या तो वो इंडिविजुअल अपने कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं, या तो हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उन कस्टमर्स को हम कहते हैं फाइनल कस्टमर्स या इंडिविजुअल कस्टमर्स। आई होप इट इज़ क्लियर, ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स एंड individual customers. Now again, individual customer or final customers may be the user, may not be the user, right? मैंने कहा ना कि चीज़ें खरीद के मैं खुद यूज़ कर भी सकती हूँ और नहीं भी कर सकती हूँ। तो in case if I am buying the commodity and I am using it, I am the final customer and I am also the end user, right? At the same time, if I am buying it for my family members or for a group of friends, I am the customer, I am the buyer, but I am not the end user. Why do we need to understand all these differences in this particular session? Because each and every aspect, you know, it impact the buying decision, the purchasing decisions, right? जैसे अगर मैंने कोई कमोडिटी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए खरीदे हैं, तो उसमें मेरे डिसीजन के साथ साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स के डिसीजन भी इन्वॉल्व होंगे। तो एज अ मार्केटर अगर आप मुझे अप्रोच करने की कोशिश करोगे, तो यू विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज माय एटीट्यूड, प्रेफरेंस, चॉइस, एट द सेम टाइम व्हाट इज द चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ द फैमिली मेम्बर्स हु आर यूजिंग इट। तो उस केस में एज अ मार्केटर, एज अ मैनेजर, यू हैव टू सी, यू हैव टू लुक, यू हैव टू रिसर्च ऑन बोथ दी पार्टीज, यूजर्स के लिए भी, बायर्स के लिए भी और यूजर्स के लिए भी, राइट? दिस वे वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर्स। तो अगर हम देखें तो कस्टमर्स, दे आर द बायर्स ऑफ द ऑफरिंग, सो एनी बायर एंड फॉर वट एवर पर्पज दे आर बाइंग, दे आर कस्टमर्स, बट someone who is, you know, using that particular offering is called consumer. Consumer can be the buyer, cannot be the buyer, but one thing is for sure that consumer is the user. ठीक है, कंज्यूमर हो सकता है कि वो बायर ना हो, वो खुद ना खरीद रहा हो, ठीक है, हो सकता है उसको कोई और खरीद रहा हो, उसके घर में उसके पेरेंट्स खरीद रहे हों, उसके बड़े भाई बहन खरीद रहे हों, ठीक है, कोई भी और खरीद रहा है, बट यूज़र वो है। दूसरा जो एक डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है उनके पर्पस पे। तो कस्टमर्स जो चीज़ें खरीदते हैं वो रीसेलिंग के लिए भी खरीद सकते हैं और ओन कंजम्पशन के लिए भी खरीद सकते हैं, यानी कि कस्टमर्स में भी ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स एंड कस्टमर्स में ऑल्सो भी फाइनल कस्टमर्स और इंडिविजुअल कस्टमर्स, वेयर एज व्हेन आई टॉक ऑफ कंज्यूमर्स, it means we are talking of someone who are consuming, who are using it, right? On the basis of purchase, if we see, customers are the one who are making the purchases. That means customers are essentially the buyers. Customers तो buyers हैं ही हैं, ठीक है? Consumer may be the buyer, may not be the buyer, not necessarily the purchaser. कोई ज़रूरी नहीं है कि consumer ही buyer हो, consumer buyer हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, whereas customer buyer होता ही है। दिस इज़ द डिफरेंस। और अगर हम टाइप्स में देखें तो कस्टमर्स जो होते हैं, दे आर आइदर इंडिविजुअल कस्टमर्स और ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स, वेयर एज व्हेन वी टॉक ऑफ कंज्यूमर्स, दे मे बी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, एज आई सेड, इंडिविजुअल फॉर माई चाइल्ड, फॉर माई डॉटर, और मे बी ग्रुप ऑफ पीपल, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स, यू नो, लाइक दैट. So why this, this is becoming important to understand consumer behavior. And I tell you one thing, consumer behavior has gained so much of importance that it has emerged as a sub-discipline for study. इसमें बहुत सारे हैं जो रिसर्चर्स जो कंज्यूमर बिहेवियर पे ही होते हैं, या ज़्यादातर रिसर्चर्स अगर आप देखेंगे तो वो कंज्यूमर बिहेवियर पे ही फोकस्ड होते हैं. तो क्यों ऐसा इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी मार्केटर के लिए
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कस्टमर्स की स्टडी करना, कंज्यूमर्स की स्टडी करना। इस सेशन में हम लोग जब बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स की या फाइनल कस्टमर्स की, इसीलिए हम इसको बार बार कंज्यूमर भी कहेंगे या कस्टमर्स भी कह सकते हैं, राइट? सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट इट. So as I said, we need to focus on the consumers, their attitudes, how they work, how the interest is aroused, कि उनको एक पर्टिकुलर कोई चीज़ खरीदनी है, वो कैसे, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मोटिवेट करती हैं कि आपकी चीज़ों को वो खरीदें. Why should they buy your product and why should they prefer your over others, over the competitors? ये सब जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करें. एंड it must be sounding maybe simpler, consumer behavior, consumer के behavior को जानने की कोशिश करें वो consumer behavior है, but believe me, when you really go to study the consumer behavior, it is much complex in nature and it involves 5 disciplines. साइकोलॉजी, कैसे उनकी साइकोलॉजी वर्क करती है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. तो ये पांचों डिसिप्लिन्स की थोड़ी थोड़ी अगर आपको जानकारी है या उसका नॉलेज होना ज़रूरी है इफ़ यू रियली वांट टू do a study on consumer behavior, right? Again, I would like to explain the importance of consumer behavior or the reason for studying consumer behavior with an example. If you remember the advertisement of polio, ठीक है? First of all, polio के advertisement में आता कौन है? हमारे महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन जी, राइट? वो आते हैं. और उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि बहुत साल पहले जो पोलियो का एडवर्टीजमेंट आता था और अभी जो पोलियो के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, ठीक है, या आए, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, उसमें भी काफ़ी फ़र्क आए हैं. तो ऐसा क्या हुआ, क्यों पोलियो के लिए यूज़र कौन हुआ? हु इज़ द यूज़र, हु इज़ द एंड यूज़र फॉर द पोलियो ड्रॉप्स? द किड्स, ऑफ कोर्स. बड़े लोग उसके यूज़र नहीं हैं, बट किड्स का क्या इसमें कोई रोल है कि उनको दवा पीनी है कि नहीं? और वो भी किड्स कौन से, जो कि 5 ईयर्स तक की एज ग्रुप के हों, उन किड्स को हम टारगेट कर रहे हैं. तो उनका डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है. रोल कौन है? द वन हु आर टेकिंग देम टू दी पोलियो बूथ, जो उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलवाने ले जा रहे हैं, पिलाने के लिए ले जा रहे हैं, उनका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है. तो यूज़र भले ही किड्स हैं, यूज़र भले ही बच्चे हैं, लेकिन जो उनको ले जा रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स आप कहेंगे, ऑल्दो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, पर जो बायर्स हैं इस पोलियो ड्रॉप के, वो कौन है? अडल्ट, बिग पीपल, आइदर देयर पेरेंट्स और देयर ग्रैंड पेरेंट्स, राइट? सो इनिशियली व्हेन पोलियो कैंपेन वाज मेड, जब उसका एडवर्टीजमेंट बनाया गया था, अमिताभ बच्चन जी ही वाज रिक्वेस्टिंग द ऑडियंस टू कम टू द पोलियो बूथ एंड गेट द ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप्स टू द चिल्ड्रन. तो उनका जो अवतार था वो रिक्वेस्ट कर रहे थे. एंड देन इट वाज ऑब्जर्व्ड कि पोलियो बूथ पे उतने लोग आ नहीं रहे जितने आने चाहिए. एंड अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ दिस, इट वाज रियलाइज्ड कि इसको कुछ और तरीके से इसको प्रमोट करना है, कुछ और तरीके से इसको एडवर्टाइज़ करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोलियो बूथ पर आएँ, पोलियो ड्रॉप लें, ताकि पोलियो को जो है हम इरेडिकेट कर सकें अपनी सोसाइटी से. तो टिल द टाइम अमिताभ बच्चन जी ही वॉज रिक्वेस्टिंग पीपल, उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लोग थे उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को, जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उस समय जो थे देखेंगे, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ क्या चीज़ एसोसिएट किया था? यंग एंग्री मैन वाला एक इमेज. So the image that they had was young angry man, and the person who was coming to advertise and the person who was coming to ask people to come for polio drop, he was requesting, so they could not associate. वहाँ पे वो association नहीं हो पा रहा था, वो associate नहीं कर पा रहे थे कि ये वही अमिताभ बच्चन है जिनको हम देखने जाते हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं. तो एक रिसर्च किया गया और रिसर्च करने पे पाया गया कि चूँकि ये भी एक एंगल हो सकता है. इसके बाद नेक्स्ट के जो उनके एडवर्टीजमेंट्स आए, यू वुड सी कि फिर वो एक उनका जो एक गुस्से वाला एडवर्टीजमेंट आता है कि वाई डोंट यू कम एंड गिव ड्रॉप्स टू योर चिल्ड्रन, कि आप आइए और ड्रॉप दीजिए. उसमें आप अलग अलग एडवर्टीजमेंट देखेंगे जहाँ पर वो गुस्सा करके और लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, ये देना ही ज़रूरी है, डोंट यू केयर फॉर योर किड्स. और बाद में आप देखेंगे कि सम अदर पीपल वर रोप्ड इन, जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी, ऐश्वर्या राय को भी रोप इन किया गया उसमें. एंड देन शी इज़ ऑल्सो telling Amitabh ji ki that I have explained it to the audience, please don't get angry and talk to them. So these are the advertisement campaign. क्यों आखिर ये सारे बदलाव किए गए? क्यों advertisement campaigns change किए गए? Why? Only because to change the mindset of the consumer, to influence the behavior of the consumers. उसी तरीके से अगर आप देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल्स ये हैं कि ड्यूरिंग फेस्टिवल्स इफ़ यू सी द बाइंग टेंडेंसीज ऑफ कस्टमर्स, and also during occasions such as Mother's Day, Father's Day,
द बाइंग टेंडेंसीज ऑफ कस्टमर्स इट इंक्रीजेस। बाकी समय में जो भी सेल चल रही होती है उससे ज़्यादा सेल इन सारे ओकेजन्स में चल रही है, ऐसे फेस्टिवल्स में चल रही होती है। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर है, ये सोसाइटी है, सोसाइटी में जो जैसे कर रहे हैं वैसे हर इंसान करने को ह्यूमन बीइंग दे वांट टू एसोसिएटेड इन द सोसाइटी, वो सोसाइटी का एक पार्ट है। तो ऐसे केसेस में जो भी बाकी लोग करेंगे, जैसा भी कल्चर होगा, उसका भी इफेक्ट होता है हमारे बाइंग बिहेवियर पे। So therefore we can say that consumer behavior is the study of when, why, how and where people do or do not buy a product, and it also tries to understand the buyer decision making process both individually and in groups, because buyer may behave different when he is making a decision or she is making a decision individually, and he or she may behave different when they are in the groups, right? So it also tries to understand their decision making process both individually and in groups. It also results from individual and environmental forces. बहुत सारे environmental forces भी ऐसे होते हैं जो हमारे behavior को, हमारे decision making को impact करते हैं, influence करते हैं. That is why we say that consumer behavior is a function of the interaction of consumers' personal influences and the outside forces. दोनों को मिला करके उनका जो उनके अपने पर्सनल इन्फ्लुएंसेस, हमारा जो अपना व्यक्तित्व है वो, और आउटसाइड फोर्सेस जो हमें कंपेल कर रहे हैं, जो हमें फोर्स कर रहे हैं या स्टिमुलेट कर रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर तरीके का बिहेवियर करें, या हमारी जो बाइंग डिसीजन है उसको इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं. So if we see the factors, external factors or factors that influence buyer behavior, again in the case of organizational customers, those factors are economic factors, political legal factors, social responsibility factors and competition, right? Different factors are there. We are not studying those factors since we are not studying organizational customer behavior here. So for the time being, I am keeping it aside. हम इसके बारे में discuss नहीं करेंगे. What we are going to discuss is about the factors which are influencing the behavior of individual or final customers. तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल या फाइनल कस्टमर्स को इम्पैक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं? दोज फैक्टर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 categories, 4 factors. They are cultural factors, social factors, personal factors and psychological factors. So let us now quickly see what are all these factors and how they really impact or influence the buying decision of consumers. Cultural factors. A culture has huge influence on the thought of the people, right? जो भी हम जैसा बिहेव करते हैं या हमारी जैसी आदतें होती हैं वो बहुत कुछ डिपेंड करती हैं हमारे कल्चर पे. It influences how people perceive the world around them, their place in it and how they make decisions also. That is also influenced by the cultural factors, and it plays a very important role in determining how and why we consume goods and services. For example, if we see, अगर एशियन की हम बात, कॉन्टिनेंट्स की बात करें, एशियन पीपल की बात करें, तो यहाँ पर टेंडेंसी थोड़ा सा होलिस्टिक सोचने की है, फैमिली ओरिएंटेशन ज़्यादा है. जबकि वेराज इफ़ वी थिंक ऑफ वेस्टर्न पार्ट, तो उसमें हम देखेंगे ग्लोब के वेस्टर्न पार्ट में जाएं तो वील एक्सपीरियंस कि वहाँ पर इंडिविजुअलिज्म को, इंडिविजुअल थॉट्स को, उनके प्रेफरेंसेस को ज़्यादा महत्व होता है. यानी कि जो वहाँ के इंडिविजुअल्स होते हैं, दे वुड लाइक टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स फर्स्ट rather than thinking about them, their family. ऐसा नहीं कि वो सोचते नहीं हैं, बट उनका तरीका दूसरा है. और एशियन कॉन्टिनेंट में अगर आप बात देखेंगे तो उनका तरीका आप देखेंगे कि डिफरेंट है. ठीक है, उनका जो टेक है किसी चीज़ को लेकर के वो डिफरेंट है. और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मोटर बाइक की जो मार्केटिंग होती है, इफ़ यू सी इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब इट इज़ डिफरेंट एंड इन एशियन पार्ट, एशियन मार्केट इट इज़ डिफरेंट. वेस्टर्न ग्लोब में उसको इंडिविजुअल प्रोडक्ट के तौर पर दिखाया जाता है, जबकि एशियन मार्केट में जब वही आप मोटर बाइक लेके आते हो तो उसका जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन होता है उसको आप एक फैमिली मोटर बाइक दिखाते हो. The whole family is using that motorbike, right? So these cultural factors, they can further be classified into culture, subculture and social class. कि अब ये चीज़ें क्या हैं, कि कल्चर क्या होता है, कल्चरल फैक्टर्स में भी कल्चर क्या है, सब कल्चर क्या है, सोशल क्लास क्या है, इस पे हम लोग आते हैं. कल्चर इज बेसिकली द सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज, परसेप्शंस, वॉन्ट्स and behaviors learned by a member of society from family and other important institutions. दूसरे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हुए? आपका स्कूल, कॉलेज, ठीक है, या किसी क्लब से अगर आप एसोसिएटेड है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके बिहेवियर को, आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करती हैं. और हर कल्चर के अपने कुछ ओन सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, जो कि उनके ओवरऑल नीड्स, प्रेफरेंसेस को और ओवरऑल बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी all the diners or restaurants or eateries which are there,
they categorically provide different cuisine during सर्टन फेस्टिवल्स. जैसे कि नवरात्रि होती है तो आप देखेंगे कि पूरे मार्केट में आप खाने जाइए तो डाइनर्स या ईटरीज या रेस्टोरेंट्स में नवरात्रि थाली या व्रत की थाली स्पेशली सर्व्ड, जो उस वक्त उनका जो फोकस होता है, उनका जो पूरा वो करने की कोशिश करते हैं कस्टमर्स को, तो उनको जो मेन जो वो शो करेंगे, आपको शोकेस करते हैं, वो अपनी नवरात्रि थाली को शो करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में है कि हम वो फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं, और उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो ऑब्जर्व फास्ट, एंड व्हेन दे आर ऑब्जर्विंग फास्ट देयर नीड इज़ डिफरेंट. ठीक है, वो सेम खाना नहीं खाते कि जो कि बाकी नॉन ऑब्जर्विंग फास्ट वाले डेज में हम खा रहे होते हैं, उनका खाना थोड़ा डिफरेंट होता है. तो ऐसे केसेस में देखिए कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ कि उन ड्यूरिंग दोज टाइम्स, उस ओकेजन में, उन फेस्टिवल्स में, जो इवन ये सारे हमारे जो ऑफरिंग्स प्रोवाइड करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, दे आर showing it, they are trying to approach customers with a different attitude, with a different campaign. Then subculture. The culture can be further categorized into various parts. उनको और छोटे छोटे सेक्शंस में अगर हम लोग कल्चर को बांटे तो उसको हम कहते हैं सब कल्चर. जैसे हमने एशियन कॉन्टिनेंट की बात की, अब एशियन कॉन्टिनेंट में वेस्ट एशिया अलग थोड़ा होगा, सेंट्रल एशिया थोड़ा अलग होगा, साउथ एशिया थोड़ा अलग होगा. ठीक है, तो उसी तरीके से हम और उन सब कल्चर्स का जो होता है उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर्स की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, या उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे अगर हम बात करें तो उसका इम्पैक्ट होता है. तो ये सब कल्चर्स भी जो है दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ नेशनैलिटी ग्रुप्स, नेशनैलिटी फॉर अ पर्टिकुलर फ्रॉम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, और मे बी रेशियल ग्रुप्स और जोग्राफिकल ग्रुप्स. ठीक है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन हो गया, या एशियन यूरोपियन हो गया, और मे बी रिलीजियस ग्रुप्स सच एज क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड हिंदूज. तो इस कल्चर को भी हम अगर चाहें, क्यों हम इसको फर्दर सब डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वाई आर वी फोकसिंग ऑन ऑल दिस थिंग? रिमेंबर सेगमेंटिंग. व्हाट डज सेगमेंटिंग से? दैट यू हैव टू क्रिएट द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू होमोजीनियस वन. यानी कि आप अपने मार्केट को पहले एक ऐसे सेगमेंट में डिवाइड करिए, ऐसे सेगमेंट में कन्वर्ट करिए, ऐसे पार्ट में जहाँ पर के जो लोग हों, जो कंज्यूमर्स हों, वो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करें. अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू केटर देम एफिशिएंटली. तो उनको एफिशिएंटली केटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सेगमेंट कर रहे हैं. तो इवन सेगमेंटिंग में भी ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत काम आते हैं. हाउ आर यू गोइंग टू डिवाइड द मार्केट, राइट? एंड देन सोशल क्लास. सोशल क्लास इज व्हाट? इट मे बी अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास. मिडिल क्लास अगेन मे बी अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास. और हर क्लासेस के अगर आप देखेंगे तो उनकी जो नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होते हैं. उनके जो स्टिमुलस होते हैं, जो उनको मोटिवेट करते हैं किसी चीज़ के लिए, वो भी डिफरेंट होते हैं. अपर क्लास की नीड कुछ और हो सकती है, लोअर क्लास की नीड कुछ और हो सकती है. For example, again, a family from a higher class may wish to eat in a 5-star hotel, whereas if you talk of lower middle class or lower class, they are price conscious. तो वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे उनको खाना अच्छा मिले लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा ना हो. उनको एम्बियंस का बहुत शौक नहीं है. दे आर नॉट पेइंग फॉर एम्बियंस, दे आर पेइंग फॉर द फूड ओनली, राइट? Now comes the cultural factors we have seen. Now let us discuss social factors. Humans are social beings and they imitate and want to be socially accepted and admired in the society. किसी को भी अगर आप अकेला कर दो तो आप देखोगे कि फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव. तो ह्यूमन बीइंग को हम ऐसे ही कहते हैं कि वो सोशल बीइंग है, विदाउट सोसाइटी जिंदा नहीं रह सकते हैं. तो ऐसे केस में चूंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करते हैं एट टाइम्स. तो सोशल फैक्टर्स ऑल्सो हैव इन्फ्लुएंस ऑन द बाइंग डिसीजन और your behavior, right? Again, social factors can be categorized into family, reference groups, roles and status. ठीक है, अब हम इसको भी वन बाय वन देखते हैं. व्हाट इज फैमिली? फैमिली मेंबर्स, एज यू नो, फैमिली का इन्फ्लुएंस देखो सबसे ज़्यादा होता है. क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस. वाई? बिकॉज वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. हम एक एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं, उसमें बड़े होते हैं और कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए बड़े हो रहे होते हैं. तो वो चीज़ें हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होती हैं. ठीक है, तो फैमिली तो इन्फ्लुएंस करती है और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. अगेन, जो फैमिली भी आप देखोगे, आप देख सकते हो दो तरीके की फैमिलीज, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जिसमें आप पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए जिनके साथ आप बड़े हुए हैं. ठीक है, उनका अपना एक तरीका है, एक रिलीजन है जो फॉलो करते हैं, कुछ इकोनॉमीज़ उनकी अपनी हर हाउस होल्ड की होती हैं, उनका कुछ पर्सनल एम्बिशन होता है, सेल्फ वर्थ होता है, कुछ उनके अपने अपने अलग कल्चर्स होते हैं. ठीक है, वो उसको कर रहे होते हैं. बट एट द सेम टाइम व्हेन यू ग्रो अप एंड यू हैव योर ओन फैमिली, ठीक है, आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन हो जाता है. यानी कि योर बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय द फैमिली, द वन वेयर यू हैव बीन रेज्ड,
जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, उसका इन्फ्लुएंस भी आपके अंदर है। एट द सेम टाइम जो आपका स्पाउस आया, हस्बैंड या वाइफ आया, उसका भी अपना कुछ, या आपका जो पार्टनर है उसके अपने भी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, उसके अपने भी कुछ तरीके हैं, तौर तरीके हैं, ठीक है, जो कि आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और आप उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। एट द सेम टाइम चिल्ड्रन ऑल्सो आर देयर, तो उनके भी अपने कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद द पीयर ग्रुप। वो बाकी बच्चों के साथ स्कूल में अपने खेलने के टाइम में उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी अपना कुछ परसेप्शन फॉर्म करते हैं, उनके भी कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ एटीट्यूड्स होते हैं, ठीक है, तो दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस। इंडिया में कैसे फैमिली का कैसे इन्फ्लुएंस होता है, इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो बहुत सारी जगहों पे अभी भी अब मॉडर्न कल्चर में चीज़ें काफ़ी चेंज भी हो रही हैं, बट बहुत सारी जगहों पे अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे उनके बाइंग डिसीजन की बात आएगी तो हस्बैंड दे प्ले डोमिनेंट रोल, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, इफ़ यू हैव टू बाय सम इंश्योरेंस पॉलिसी, मे बी ऑटोमोबाइल्स, तो ऐसे केसेस में हस्बैंड्स दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। कुछ होम अप्लायंसेज हैं, ठीक है, ऐसे केसेस में ज्वेलरीज हैं, कुछ ऐसी चीज़ करनी है, तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि द वाइफ्स दे आर प्लेइंग डोमिनेंट रोल। एंड देयर आर सर्टन एरियाज वेयर बोथ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, कुछ चीज़ों जैसे अगर आपको कुछ कैंडीज़ खरीदनी, कुकीज़ खरीदनी, तो ऑफकोर्स जो बच्चे चाहेंगे आप उनको खरीद के लाएंगे, तो वहाँ पे बच्चों का डोमिनेंस होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे सबका इक्वल डोमिनेंस होता है, जैसे कि अगर आपको घर खरीदना हुआ, या अगर आपको छुट्टियों के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, या बाहर आकर कोई फिल्म देखने जा रहे हैं, कहीं एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, देन इक्वल यू वुड सी पार्टिसिपेशन, जीरो इन होता है कि सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है, जहाँ पे सारी एक चीज़ें मैच कर जाती है, देन यू टेंड टू behave in a particular manner. So that is family. Family में family के साथ साथ आपने देखा social class में होता है reference group. Reference groups again they can be of three types. One is membership groups, the reference groups and inspirational group. Membership groups कौन से होते हैं, जैसे किसी भी particular institution से अगर आप बंधे हुए हैं, कोई क्लब्स हैं उनके आप मेंबर्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पे काम करने जा रहे हैं, सो दे आर मेंबरशिप ग्रुप्स, राइट। रेफरेंस ग्रुप्स, व्हाट आर रेफरेंस ग्रुप्स, दे हैव डायरेक्ट फेस टू फेस और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन दी पर्सन्स एटीट्यूड्स और बिहेवियर। कि आपका जो पीयर ग्रुप है, जो कलीग्स हैं, अडल्ट्स की अगर हम बात करें तो जो कलीग्स हैं वो उनका हो गया क्लासमेट्स हो गए, बैचमेट्स हो गए, प्लेमेट्स हो गए, दैट बिकम्स आर रेफरेंस ग्रुप। तो उनका भी इन्फ्लुएंस हमारे पे होता है। व्हेन यू इंटरेक्ट यू टेंड टू नो सर्टन थिंग्स, लोग आपको फीडबैक दे रहे होते हैं अपना, ठीक है, ऐसे केसेस में वो रेफरेंस ग्रुप्स काम आते हैं। एंड देन इंस्पिरेशनल ग्रुप जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, दे मे बी रोल मॉडल्स ऑफ योर्स। वो रोल मॉडल्स कोई भी हो सकते हैं, कोई ऐसी पर्सनालिटीज़, कोई ऐसे बहुत बड़े कोई साइंटिस्ट हो गए या सेलिब्रिटीज़ हो गए, स्पोर्ट्स स्टार्स हो गए, सबके अलग अलग रोल मॉडल्स होते हैं और रोल मॉडल्स भी जो है वो सबको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, राइट। और अगेन एज आई सेड कि जब मैंने कहा ना कि डिलाइटेड कस्टमर्स दे एक्ट लाइक योर ब्रांड एम्बेसडर, दे एडवर्टाइज फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट, वो खुद आपके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं, रेफरेंस ग्रुप्स हो गए या मेंबरशिप ग्रुप्स हो गए, इंस्पिरेशनल ग्रुप्स हो गए, इसी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। व्हेन से फॉर एग्जांपल 5 पीपल इन अ ग्रुप दे आर टॉकिंग गुड अबाउट समथिंग, आपको भी एक इंटरेस्ट आता है ना कि वो चीज़ कुछ अच्छी होगी, इसके लिए इतना पॉजिटिव फीडबैक सबका आ रहा है, तो लेट अस ट्राई दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दिस इज हाउ दीज काइंड्स ऑफ ग्रुप्स दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। एंड देन रोल्स एंड स्टेटस दैट यू अक्वायर इन द सोसाइटी, वो भी आपके बिहेवियर को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि टीचर्स हैं, उनसे एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की। जो प्रोफेशनल्स होंगे, डॉक्टर्स इंजीनियर्स, उनसे डिफरेंट तरीके की एक्सपेक्टेशंस होंगी सोसाइटी में। जो सेलिब्रिटीज़ होंगे उनसे डिफरेंट तरीके की एक्सपेक्टेशंस होती है सोसाइटी में। तो द काइंड ऑफ रोल दैट यू प्ले इन द सोसाइटी एंड द काइंड ऑफ स्टेटस दैट यू पोजेस, दैट रिफ्लेक्ट्स द जनरल एस्टीम गिवन टू इट बाय द सोसाइटी, राइट। जैसे कि अगर आप देखेंगे क्लोथिंग स्टाइल है, तो जो कॉर्पोरेट पीपल है उनका क्लोथिंग स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम कॉर्पोरेट। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनका कुछ एसोसिएशन है, उनका क्लोथिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा, और जो कॉर्पोरेट लोग हैं उनका क्लोथिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। एंड देन कम्स पर्सनल फैक्टर. So what are the personal factors? It is age and life cycle stage, occupation, economic situation, that is your income group, आपकी purchasing power क्या है जिसको हम कहते हैं, your lifestyle and personality and self concept. So let us discuss all these factors. Age and life cycle stage. This also plays a very, very important role in the way a people behave. When we are children, आपकी willingness to pay becomes very, very important. आपकी readiness to pay for a particular class. Suppose आप एक feedback लेते हो जिसमें आप लिखते हो कि भाई आपकी income क्या है, और आपने इसमें ग्रुप बना दिया less than 50,000 to 1 lakh और 1 lakh to 2 lakh, है ना।
तो हो सकता है कि उसमें लेस देन 50,000 में वो वाला बंदा, आपके हिसाब से उसकी परचेजिंग पावर कम हुई, 50,000 है, लेकिन हो सकता है कि उसमें वो बंदा है जिसकी फैमिली पीछे पूरी सेटल्ड है, अभी वो अनमैरिड है, तो वो पूरा 50,000 उसके लिए क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है. बट सपोज यू आर ट्राइंग समवन जो कि आपकी इनकम ब्रैकेट में 1 लाख से 2 लाख के अंदर आता है, ठीक है, बट ही और शी हैज़ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द बैकग्राउंड. ऐसे केसेस में उसके पास परचेजिंग पावर तो है, पर उसका रेडीनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे जो है वो आपके पर्टिकुलर ऑफरिंग के लिए है कि नहीं, यू हैव टू सी. तो all these things you need to understand, all these things you need to study when you are going to study the behavior of the customers. And likewise the lifestyle also influences your buying decision, कि कैसे आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप किस तरीके से, अगेन वो स्टेटस पे डिपेंड करता है, वो रोल्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की लाइफस्टाइल अपने ज़िंदगी में रखते हैं, या कभी कभी अपने चॉइस और प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डू यू वांट फॉर योर ओन सेल्फ. किसी को पसंद होता है थोड़ा सा लग्जरियस आइटम्स में जाना, या किसी की ज़रूरत होती है लग्जरियस आइटम्स में जाना रखना, और मे भी किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की प्रेफरेंस भी नहीं हो सकती है, राइट. एंड देन पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी इन्फ्लुएंस करती है आपके डिसीजन मेकिंग को. बाय नेचर कुछ लोग फ्रूगल होंगे, आप देखेंगे कुछ लोग बहुत वाइजली स्पेंड करते हैं, कुछ लोग बहुत इम्पल्सिव बाइंग करते हैं. वो क्या होता है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, वो उनका अपना नेचर भी है, ठीक है. तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. And then comes psychological factors. They also play a very, very, very important role, and that is why marketing people, they are preferring to hire people, to have people who have that kind of knowledge, जिनके पास वो साइकोलॉजिकल थोड़ी सी बेंट ऑफ माइंड होती है, उनको नॉलेज होती है, उन्होंने कुछ उसमें स्पेशलाइज किया होता है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर्स. तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं, मोटिवेशन होता है, परसेप्शन होता है, लर्निंग्स, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, राइट. सो व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज समथिंग विच मोटिवेट्स यू, कुछ एक ऐसा स्टिमुली जो आपको मोटिवेट करे, एनकरेज करे एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए. जब भी सी इट इज सेड whenever there is a need there is a tension, and this is a tendency of human being that they cannot live with that tension, they have to remove that tension, so they act. वो कुछ तरीके की हरकतें करते, कुछ एक्ट करते हैं, ठीक है. और वो जो हरकत करते हैं उससे क्या होता है, उनको वो स्ट्रेस या उनको उससे जो उनका टेंशन जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है. तो मोटिवेशन क्या हुआ, एक तरीके की नीड हो गई, या एक तरीके की आपकी स्टिमुली हुई या स्टिमुलस हुआ जो आपको मोटिवेट कर रहा है, ड्राइव कर रहा है टू टेक सर्टन स्टेप, कि आप एक पर्टिकुलर स्टेप लीजिए, एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करिए, वो आपको दैट फैक्टर इज ड्राइविंग यू. नाउ अगेन द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर वन मे बी समथिंग एल्स एंड फॉर अदर मे बी समथिंग एल्स, ठीक है. किसी को हो सकता है कोई एक चीज़ मोटिवेट करती हो, किसी को कोई दूसरी चीज़, किसी को किताबें पढ़ना पसंद है, किसी को मूवीज़ देखना पसंद है, ठीक है. वही मैंने कहा कि किसी को बहुत ब्रांडेड चीज़ें पहनना पसंद होता है, और किसी को पसंद होता है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें जो है उनको यूज़ करें. So we have to judge as a marketer, we have to find out, we have to study कि what is motivating whom, जो आपका सेगमेंट है या जो आपके सेगमेंट्स हैं उनके मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या क्या हैं. There are certain things which are motivator and there are certain things which are not motivator. Say for example, अगर आपका जो सेगमेंट है वो इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि आपकी प्राइसेस में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है. तो ऐसे केसेस में क्या हो गया, वो प्राइसेस वो उनके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं रही. पर अगर कोई दूसरा सेगमेंट है जिनका जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक है, इन दैट पर्टिकुलर मार्केट व्हाट विल हैपन, इवन अ स्लाइट चेंज इन द प्राइस, अ स्लाइट डिक्रीज इन द प्राइस मे रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, हाई इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाइस वर्सा. अगर आपने थोड़ी सी भी कीमतों को बढ़ाई तो हो सकता है कि उनकी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से घट जाए. तो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस सेगमेंट को क्या चीज़ किस तरीके से मोटिवेट कर रही है. और अगेन आई वुड एम्फसाइज कि फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स डिफरेंट मोटिवेटर्स आर देयर, एंड एज अ प्रोफेशनल, एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट और मैनेजर, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वी नीड टू स्टडी दैट, राइट. देन कम्स परसेप्शन. You may be providing the best offering to the society, but how are the customers perceiving it? That is very very important, and it is the perception which creates the difference. इसी की वजह से difference होता है. In the beginning also, in the previous sessions I have told you that what brings customer delight, again the expectation and the delivery. If the expectation of the customer is this, the delivery is lesser,
एक्सपेक्टेशन हायर है, डिलीवरी कम है, दैट रिजल्ट इनटू डिससेटिस्फैक्शन विच इज़ अ कंप्लीट नो फॉर अ मार्केटर, फॉर अ मैनेजर. सपोज द एक्सपेक्टेशन एंड डिलीवरी बोथ आर इक्वल, दैट इज़ अ गुड कंडीशन, है ना, कि कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाइड हैं. बट थिंक ऑफ अ सिचुएशन, or not only think, you have to bring that situation where the expectation of the customer is this and your delivery is higher. That means you gave them, you delivered much more than they expected. In that case, what is happening? Their perception towards your product is changed. You get the delighted customer, number one, and you are trying to kind of play with their perception. आपने उसके perception को क्या कर दिया? Change कर दिया. तो perception भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइंग डिसीजन में. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो एक सेगमेंट ऐसा है अभी भी मार्केट में जो व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग और व्हेन इट कम्स टू बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, दे स्टिल बिलीव दैट नेशनलाइज्ड बैंक्स और नेशनलाइज्ड कॉरपोरेशंस जो है वो दे आर बेटर, या वो ज़्यादा रिलायबल है. ये उनका अपना परसेप्शन है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये सच हो, पर ये पर्टिकुलर एक सेगमेंट का क्या वो परसेप्शन बन गया है कि वो नेशनलाइज्ड, दे वुड प्रेफर टू गो विद नेशनलाइज्ड बैंक और मे बी नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस. ठीक है, तो दिस वे परसेप्शन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड लर्निंग, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हो सकता है कि वो आपको स्टिमुलेट ना कर रही हो अदरवाइज, बट सिंस यू हैव लर्नड, यू हैव गेन्ड सम काइंड ऑफ नॉलेज, एंड नाउ व्हेन यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस और ऑफरिंग, देन you tend to buy that particular commodity. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर आप खरीदने के लिए जाते हैं आप सोच भी रहे होते हैं, इवन इफ़ यू जस्ट मेक अ कॉल एंड यू टेल अ कार डीलर ऑटोमोबाइल में किसी के पास कि मुझे एक कार खरीदनी है, तो सबसे पहला वो क्या करता है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता है, आप कहता है कि जी आप टेस्ट ड्राइव लो. सो दिस टेस्ट ड्राइव इज़ व्हाट, नंबर वन, दे आर ट्राइंग टू मेक यू अक्वेंट विद द फीचर्स दैट आर देयर इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप उनको जस्ट फ़ोन करें, जैसे एयर प्यूरीफायर्स खरीदना हो, वेजिटेबल या फ्रूट प्यूरीफायर्स खरीदने हो, या वाटर फिल्टर्स की अगर बात करें, तो TDS एंड ऑल सच थिंग्स किसी को ऐसे इन जनरल पता नहीं होती है. वो जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं कुछ ऐसे हैं, दे मस्ट बी नोइंग, उनकी पढ़ाई में सब कुछ में ऐसा रहता है. बट अगर हम एक नॉन टेक्निकल बंदे से बात करें तो TDS क्या है, हाउ वुड वी नो. ठीक है ना, या कोई भी ऐसी चीज़ है कैसे हमें पता चलेगा. लेकिन जब वो आते हैं आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, देन दे विल शो यू कि मैम देखिए देर आर सर्टन टेक्निकल टर्म्स विच आई एम नॉट रिमेंबरिंग राइट नाउ, बट दे यूज़, एंड देन यू ऑल्सो काइंड ऑफ गेट टू नो अबाउट दोज पर्टिकुलर थिंग्स. और तब आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है. फॉर इंस्टेंस आई वुड कोट एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर सम एयर प्यूरीफायर्स. अभी नया नया वो शोर हो रहा था दिवाली के बाद कि वो बहुत पोल्यूशन एंड ऑल दैट. तो मैंने एयर प्यूरीफायर्स को जैसे ही सर्च करने की ऑप्शंस की, मेरे पास कॉल आई एंड पीपल दे हैड कम एंड दे डेमोन्स्ट्रेटेड. तो उन्होंने एयर प्यूरीफायर को तो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि देखिए ये ब्लू लाइट जल रही है, दैट मीन्स कि अभी थोड़ा आपका प्यूरीफाइड है. रेड है मीन्स यहाँ पे भी बहुत सारा इम्प्योरिटी है एयर में. तो वो तो मैंने चलो एक एयर प्यूरीफायर का मैंने दिमाग में बनाया हुआ था, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड अ वेजिटेबल और फ्रूट प्यूरीफायर, जिसका मुझे बिल्कुल मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लेना है. दैट वाज नॉट इन माय माइंड, बट दे डेमोन्स्ट्रेटेड इट. और डेमोन्स्ट्रेट करके उन्होंने दिखाया कि इतनी इम्प्योरिटीज़ हैं और ये इम्प्योरिटीज़ निकलेंगी इफ़ यू वॉश योर वेजिटेबल और फ्रूट विद दिस प्यूरीफायर. सो आई वॉज नॉट अवेयर, आई वॉज नॉट विलिंग इवन टू बाय, बट ओनली बिकॉज ऑफ देयर डेमोन्स्ट्रेशंस एक लर्निंग क्रिएट हुई एंड आई बॉट दैट. तो मेरा परचेज डिसीजन क्या हुआ, वहाँ पे चेंज हो गया. मेरा जो बाइंग बिहेवियर हुआ वो क्या हुआ, चेंज हुआ. ठीक है, and then beliefs and attitudes, they also impact the behavior of the consumers, how they behave, what they want to buy. So these were the factors. These factors, if I try to show you at a glance, again there are 4 factors: psychological factors, personal factors, social factors and cultural factors, right? So these are the factors which influence the consumer buying decision, their behavior. So if we try to summarize the sessions which we have discussed today, we'll see that consumers' choice, it results from the complex interplay of cultural, social, personal and psychological factors. And although the marketer cannot influence many of these factors, they can be useful in identifying interested buyers and in shaping the products and appeals to serve their needs better. So it is always important for the marketers to understand the consumer's buying behavior. With this, I am ending this session. So stay safe and happy learning. You are really one of my